Hello, good morning, students. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. सोनू, कल क्या काम किया? What was the homework yesterday? सोनू, am I audible to you? सुन रहे हो? कल कल क्या काम किया? लर्निंग का क्या काम किया? वही जी लेसन कुशवंत सिंह का। खुशवंत सिंह का लेसन. What is the name of the lesson? द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। सही नाम बताओ पूरा. द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। नहीं. हरिओम. Complete name. The portrait of a lady. The portrait of a lady. Good. The portrait of a lady. And the author is Kushwant Singh. Kushwant Singh. Where has the author now gone? Where is the author at present in the story? The author is in a city. Where is he? City. He is in a city. City. How does he go to school? How does he go to school nowadays? आजकल स्कूल कैसे जाता है वो? How does he? By Motor bus. by a motor bus. By a motor bus. What does he study these days? क्या क्या पढ़ता है आजकल वो? आजकल स्कूल में उसे क्या पढ़ाया जाता है? संगीत भी सिखाया जाता है, म्यूजिक, वेस्टर्न साइंस, लॉ ऑफ ग्रेविटी, Archimedes principle, all these things. What does he learn about the earth? अर्थ के बारे में क्या सीखता है वो? सुशील and Shalini. What does he learn about the earth? अर्थ के बारे में क्या सीख के आया स्कूल में वो, जो दादी को बताता है? The earth is round. The earth is round. What is the reaction of grandmother? Grandmother को सुन के कैसा लगता है? निराश हो गई थी वो। The grandmother is distressed. She is not happy at all. She is not happy at all to learn that her grandson is learning Western science, law of gravity, Archimedes principle, music, all these things she does not like. Hence, she stopped speaking to him. वो उससे बोलना छोड़ देती, चुप हो जाती. She feels helpless. असहाय महसूस करती है. Why? Because she is unable to help him in her homework. She is unable to help him in his homework, and neither is she able to change his school. ना तो उसके बस में है कि उसका स्कूल चेंज किया जा सके, उसे स्क्रिप्चर पढ़ाई जा सके, धार्मिक किताबें, उसे प्रेयर सिखाई जा सके. She is unable. That's why she is helpless and she became silent. She is unable to change anything in the house. Right?
Up to here we read yesterday. Now let's go further. Here it is. Where did we leave yesterday? To her music had lewd associations. उसके लिए म्यूजिक का जो संबंध है वो लोअर क्लास के लिए है, लोअर क्लास के साथ है. It was the monopoly of harlots and beggars. भिखारियों का काम है, डूमों का, हार्लेट्स का काम है, and not meant for gentle folk. अच्छे और भले घर के लोगों के लिए गाना बजाना अच्छी चीज नहीं है, ऐसा दादी का विचार था. This is what she thought. She said nothing, but her silence meant disapproval. अपने विचार उसने घर के किसी सदस्य को बोले तो नहीं, लेकिन उसकी चुप्पी बता रही थी कि she does not approve this. वो बच्चे का ये सब सीखना, म्यूजिक सीखना, वेस्टर्न साइंस सीखना सही नहीं मानती थी, इसे डिसअप्रूव करती थी. She rarely talks to me after that. इसीलिए शायद वो मुझसे बहुत कम बातें करती थी. रेयरली, कभी कभार ही, दुर्लभ हो गया था उसका मुझसे बातें करना. After that, When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, I was given a room of my own. फिर तो और हम एक दूसरे से कट गए. क्यों कट गए? I was given a room of my own. अब मुझे एक अलग कमरा मिल गया. Up to now, I and दादी were living in the same room. अब तक दादी और मैं, भले ही दादी बोलती नहीं थी, एक कमरे में तो रहते थे, मुलाकातें तो होती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी के समय मुझे घर में अलग से कमरा मिल गया. The common link of friendship was snapped. और जो दोस्ती का छोटा सा एक धागा था वो भी टूट गया. Snapped, broke. My grandmother accepted her seclusion with resignation. Accepted her seclusion. अपना अकेलापन दादी ने स्वीकार कर लिया था. With resignation, हार कर, बेबस होकर. My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. अब वो सारा दिन अपने चरखे पे बैठी रहती थी. स्पिनिंग व्हील, चरखा. To talk to anyone, किसी से बात करने का उसके पास समय नहीं था. From sunrise to sunset, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सुबह से शाम तक. She sat by her wheel, spinning and reciting prayers. वो अपने चरखे पर बैठकर काटती रहती थी, सूत काटती थी और प्रार्थनाएं गुनगुनाती थी. Reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. बस दोपहर को थोड़ी देर के लिए, for a while, थोड़ी देर के लिए she relaxed. वो थोड़ा सा आराम करती थी, चरखा छोड़ती थी. वो भी किस लिए? To feed the sparrows. चिड़ियाओं को खाना खिलाने के लिए, फीड करने के लिए. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits. जब वो बरामदे में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर रही होती थी, hundreds of little birds collected round her. सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे पक्षी चारों तरफ से उसे घेर लेते थे. Creating a veritable bedlam of chirpings. और चहचहाट का शोर मचा देते थे. Some came perched on her legs. कुछ आकर उसकी टांगों पे बैठ जाती थी. Perched, sat on her legs. Others on her shoulders. कुछ कंधों पर बैठ जाती थी. Some even sat on her head.
कई तो आकर उसके सिर पे बैठ जाती थी। She smiled but never shooed them away. और दादी मुस्कुराती थी, दादी को अच्छा लगता था, वो कभी उन्हें हटाती नहीं थी। सिर पे बैठी, जैसे मक्खी बैठती है तो आप हटाते हो ऐसे हाथ से। चिड़िया जब उसके कंधों पर, सिर पर, टांगों पर बैठती थी, she never shooed them away. कभी उसने उन्हें हटाया नहीं, उन्हें झिड़का नहीं, रिब्यूक नहीं किया। It used to be the happiest half hour of the day for her. दादी के लिए दिन भर का सबसे खुशनुमा हिस्सा होता था ये। There will be a question from this paragraph. What was the happiest half hour of the day for the grandmother? दादी के लिए दिन का सबसे खुशनुमा हिस्सा कौन सा होता था? कौन सा होता था? Speak, Hariom. Afternoon, sir. Afternoon, what? When? Sir, वो sparrows को feed. when she fed the sparrows in the afternoon, when she fed the sparrows, जब वो चिड़ियाओं को खाना खिलाती थी, वो दादी के दिन का सबसे खुशनुमा घंटा होता था या समय होता था। What attribute of her character do you see after reading this paragraph? ये पैराग्राफ देखकर हमें दादी के चरित्र की एक कौन सी विशेषता समझ में आती है? क्या गुण दादी में नजर आता है? दादी जी पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। यस, सोनू बोल रहा है, कुछ बोलो। जी दादी को ना पक्षियों से बहुत प्यार था। यस, शी लव्स एनिमल्स, बर्ड्स, शी इज ए काइंड लेडी, शी फीड्स sparrows in the city and she used to feed dogs in the village, right? So you can say she is a very kind-hearted woman, generous. When I decided to go abroad for further studies, और जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, I was sure my grandmother would be upset. तो मुझे यकीन था कि दादी और उदास हो जाएगी, दादी को और बुरा लगेगा कि यहाँ कम से कम आंख के सामने तो था, अगर मेरी बातों को अप्रूव नहीं करता था, प्रार्थनाएं नहीं गाता था, स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ता था, कम से कम नजरों के सामने तो था, घर पे तो आता था। अब विदेश जाएगा तो और बिगड़ जाएगा। I would be away for 5 years. कुसुम सिंह कहते हैं मुझे 5 साल तक घर से दूर रहना था। And at her age one could never tell. और जैसी दादी की उम्र थी, कुछ नहीं कहा जा सकता था कि कब वो चली जाए। But my grandmother could. लेकिन मेरी दादी नहीं गई। She lived. वो जी, मेरे आने तक she was living. She was not even sentimental. और मुझे विदा करते वक्त वो भावुक भी नहीं हुई। She was not even sentimental. कमजोरी उसने नहीं दिखाई, अपनी भावनाएं उजागर नहीं की, जैसे दादी, नानी, मम्मी करती है बेटा जब घर से जाता है दूर। The grandmother did not show at all. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. छोड़ने तो आई थी स्टेशन तक, लेकिन दादी ने बात नहीं की, ना ही कोई ऐसी इमोशन दिखाई कि उसे बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है।
या वो देखने से उसे उसका दिल बैठा जा रहा है, ऐसा कुछ भी दादी ने जाहिर नहीं होने दिया। हर लिप्स मूव इन प्रेयर, सामान्य दिनों की तरह उसके होंठ प्रार्थना में बुदबुदाते रहे। हर माइंड वाज लोस्ट इन प्रेयर, और उसका मन भी प्रार्थना में ही खोया हुआ था। उस समय भी जब पोता 5 साल के लिए विदेश जा रहा था। Her fingers were busy telling the beads of a rosary. उसकी उंगलियां माला के मोती गिनने में बिजी थी। Her fingers were busy telling, teller जैसा बैंक में होता है, गिनने वाला। Telling the beads of her rosary, माला के मोती गिनने में लगी थी। Silently she kissed my forehead. Then she showed some emotion. चुपके से वो आगे आई और उसने मुझे माथे पे चूमा। And when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और जब मैं चला, गाड़ी चली, I cherished, मुझे बहुत मजा आया, अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? The moist imprint, गीला स्पर्श, दादी के होठों का गीला स्पर्श। Moist imprint as perhaps the last sign, और मुझे लगा था कि शायद ये दादी के स्पर्श का अंतिम अवसर था। Imprint as perhaps the last sign of physical contact between us, दादी से मेरे शारीरिक संपर्क का अंतिम अवसर था। इसके बाद शायद दादी मुझे कभी ना मिले। 5 साल बाद जब लौटूंगा, पता नहीं दादी जिंदा मिलेगी या नहीं मिलेगी। This was the thought in my mind while leaving the station. But that was not so. लेकिन ऐसा नहीं था। कैसा नहीं था? The grandmother did not die, did not go. She was alive when I returned. After 5 years, I came back home. 5 साल बाद मैं वापस आया and was met by her at the station. और दादी स्टेशन पर ही मुझे मिली। She did not look a day older. 5 साल गुजर चुके थे, लेकिन दादी एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। जैसी छोड़ के गई ऐसी की वैसी थी। You know, after a certain age, the age does not seem to be increasing. एक निश्चित एज पर पहुंचकर नहीं लगता कि अब और एज बढ़ रही है। काफी सालों तक उम्र जैसे ठहर जाती है। That was the case with the grandmother. She did not look a day older. She still had no time for words. लेकिन दादी की ये ऑब्स्टिनेसी दिखा रहा है। दादी जो रूठी थी तो रूठी थी। 5 साल घर से दूर रहने के बाद विदेश से पोता लौट रहा है और अब भी दादी ने एक भी शब्द उसके आने पर, उसके स्वागत में नहीं बोला। She still had no time for words. अभी भी दादी के पास बोलने का कोई समय नहीं था। And while she clasped me in her arms, और जब दादी ने मुझे गले लगाया, I could hear her reciting her prayers. तब भी वो अपनी प्रेयर्स ही बुदबुदा रही थी। मेरे लाड में, मेरे प्यार में उसने कोई शब्द नहीं कहे। मैं सुन पा रहा था जब वो उसने मुझे गले लगाया कि वो अपनी प्रार्थना ही गुनगुना रही थी। Even on the first day of my arrival, यहाँ तक कि मेरे आने के पहले दिन भी, her happiest moment were with her sparrows. वो सबसे ज्यादा खुश तभी नजर आई जब वो चिड़ियाओं के साथ थी। उस दिन भी, जबकि ऑथर की एक्सपेक्टेशन थी ना, आम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि पोते के आने से
दादी ज्यादा खुश नजर आनी चाहिए, ज्यादा खुश होंगी। लेकिन सबने नोटिस किया, खुशवंत सिंह ने भी नोटिस किया कि दादी जब चिड़ियाओं को खाना खिला रही थी दोपहर को, तब ज्यादा खुश नजर आई। Were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. और ये किससे पता चला सबको कि दादी इस समय चिड़िया को खाना खिलाते समय ज्यादा खुश है, स्टेशन से ज्यादा खुश। क्योंकि एक तो आम दिनों से ज्यादा देर तक दादी चिड़ियाओं के साथ रही, उनके साथ बातें की, उन्हें डांटा, फ्रिवोलस रिब्यूक्स। आज वो उन्हें प्यार से डांट रही थी, फटकार रही थी, बातें ज्यादा कर रही थी उनके साथ। क्यों कर रही थी? अंदाजा लगाओ। आज वो चिड़ियाओं से ज्यादा बातें कर रही थी, डांट भी रही थी उनको प्यार से, जैसे डांटते हैं, मम्मी छोटे बच्चों को डांटती है। बताओ किसको समझ आता है? खुशवंत सिंह आ रहा था ना, इसलिए वो गुस्सा आवाज निकाल क्या रहा था। क्या बोल रहा है हरिओम? सर खुशवंत सिंह आने लग रहा था ना, 5 साल के लिए गया हुआ था, हाँ, तो इस वजह से गुस्सा निकाल वेरी रही गुड। थी। एक तरह से वो खुशवंत सिंह से ही बातें कर रही थी, उसी को डांट रही थी, लेकिन अपनी जो जिद थी कि मैं नहीं बोलूंगी, मैं नाराज हूं, उससे भी हटना नहीं चाहती थी, इसलिए इनडायरेक्टली बात कर रही थी खुशवंत सिंह से। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, लेकिन ज्यादा देर तक वो नहीं रोक पाई अपने प्रेम को खुशवंत सिंह के प्रति। शाम होते होते दादी में एक परिवर्तन नजर आया। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे। क्या चेंज आया? देखा लोगों ने घर के कि वो प्रे नहीं कर रही थी, प्रार्थना नहीं चल रही थी उसके होठों से। शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, वो पड़ोस की औरतों को इकट्ठा कर ले आई, बुला लाई जाके। गॉट एन ओल्ड ड्रम, पुराना ढोलक निकाल लिया, कहीं ढोल पड़ा हुआ, ढोल में। किस दादी ने? जो म्यूजिक को क्या कह रही थी, छोटे लोगों का काम है, नीच लोगों का काम है, वो दादी घर में कभी पड़ा हुआ पुराना धूल घास में हटा हुआ एक ढोलक निकाल लाई एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गीत गाने शुरू कर दिए। व्हाट इज दिस? लव फॉर द ग्रैंडसन, हैप्पीनेस ऑन हिज अराइवल, उसके आने पर उसकी खुशी वो कंटेन नहीं कर पाई, उसको भीतर रोकना चाहती थी, दबाना चाहती थी, दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रोक पाई। 5 साल तक रोक के रखा। For several hours she thumped the sagging, dilapidated skins of the dilapidated drum, और घंटों तक उसने उस पुराने ढोल को बजाया। And sang of the homecoming of warriors, और जैसे युद्ध से आए हुए वीर सैनिकों के आगमन की खुशी में गीत गाए जाते हैं, ऐसे गीत उसने पोते के विदेश से आने पर सारी औरतों के साथ मिलकर गाए, सेलिब्रेट किया, जश्न मनाया। We had paid her to stop, हमने बहुत मना किया दादी को, मनाना पड़ा कि बस रुको अब, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, थक जाओगी, आराम करो। That was the first time since I had known her that she did not pray. खुशवंत सिंह कहता है कि उस दिन पहली बार मैंने अपनी दादी को बिना प्रेयर के देखा, उसके होठों को
चेयर में हिलते हुए ना देखने का मेरा वो पहला अवसर था। उस दिन मैंने दादी के होठों को प्रेयर के बिना देखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इन, और वही हुआ जिसका हमें डर था, ओवर स्ट्रेनिंग। सुबह जब दादी उठी तो वो बीमार थी। It was a mild fever and the doctor told us that it would go. हल्का बुखार था और डॉक्टर कहते थे कि घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा जल्दी। But my grandmother thought differently. लेकिन दादी का सोचना बिल्कुल अलग था। She told us that her end was near. दादी ने कहा कि डॉक्टर की बात मत सुनो, मुझे पता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. और फिर दादी ने कारण भी बताया, क्योंकि जीवन के अंतिम समय में मैंने प्रेयर करना छोड़ दिया था। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, अपने जीवन के अंतिम अध्याय के खत्म होने से कुछ घंटे पहले मैंने प्रभु की प्रार्थना करनी छोड़ दी थी, omitted, इसीलिए मेरा नंबर आ गया है। She was not going to waste any more time talking to us. इसलिए मुझसे अब और बातें मत करो, मैं एक भी मिनट खराब नहीं करना चाहती। अब मैं सिर्फ प्रेयर करूंगी। We protested. हमने दादी की इस बात का विरोध किया। But she ignored our protests. लेकिन उसने हमारी एक न सुनी। हमारे प्रोटेस्ट का दादी पर कोई असर नहीं हुआ। She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. वो आराम से अपने बिस्तर पर लेटकर प्रार्थना गाने लगी और माला फेरने लगी। Even before we could suspect, इससे पहले कि हमें कुछ शक होता, her lips stopped moving. उसके होंठ अचानक हिलना बंद हो गए and the rosary fell from her little lifeless fingers. और माला उसकी निर्जीव उंगलियों से गिर गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. और एक शांति उसके चेहरे पर छा गई और हमें पता चल गया कि दादी अब नहीं रही। She has passed away. We lifted her off the bed. हमने उसे बिस्तर से उठाया, as is customary. बिस्तर से उतार दिया जैसा कि रिवाज है। Laid her on the ground. जमीन पर उसे रख दिया and covered her with a red shroud. और उसे लाल कफन से ढक दिया। रेड श्राउड, लेडीज को कलर्ड श्राउड से हिंदू सिख कस्टम में ढका जाता है, जेंट्स को व्हाइट से। आफ्टर few hours of mourning, we left her alone. कुछ घंटे रो धोकर, मॉर्निंग MOURNING, सुबह वाली मॉर्निंग की क्या स्पेलिंग होती है? MORING। क्या? MORING। उसमें यू नहीं होता। मॉर्निंग का मतलब शोक मनाना, किसी की मृत्यु पे रोना। मॉर्निंग, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स। कुछ देर रोकर शोक मनाकर हम उसकी अर्थी, फ्यूनरल अर्थी, जनाजा, उसकी जनाजे की तैयारी में लग गए। टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम। शाम को हम उसके कमरे में गए विद अ क्रूड स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर बनाकर। क्रूड स्ट्रेचर, रफ सा स्ट्रेचर, अपनी जैसा अनस्किल्ड स्ट्रेचर,
एक तो स्ट्रेचर हॉस्पिटलों में होता है, खूबसूरत लोहे का या बना हुआ अच्छे मैकेनिक के द्वारा बनाया गया। एक स्ट्रेचर सब लोग बनाते हैं किसी की डेथ पर, 2 बैम्बू लेकर बीच में उसके दूसरी लकड़ियां रखकर बैम्बू की, वैसा एक स्ट्रेचर बनाया हमने, अर्थी बनाई, एंड टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, उसे जलाने के लिए, क्रीमेशन ग्राउंड, शमशान घाट, उसे क्रीमेट करने के लिए, दाह संस्कार जिसको बोलते हैं, दाह संस्कार के लिए ले चलने के लिए हम उसके कमरे में गए। द सन वाज सेटिंग, सूरज छिपने लगा था, एंड हैड लिट हर रूम एंड बरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। शाम के सूरज की जो रोशनी होती है वो उसके कमरे और बरामदे में सुनहरी रोशनी डाल रही थी, सुनहरी प्रकाश था उसके बरामदे में, उसके कमरे में। We stopped halfway in the courtyard, उसे लेकर जब हम चले आधे रास्ते आंगन में रुके। थोड़ी देर चलकर जब अर्थी उठाई जाती है तो एक बार रुकते हैं। All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead, सारे बरामदे में, उसके कमरे में, और जहां वो रखी हुई थी डेड बॉडी, stiff wrapped in the red shroud, लाल कफन में लिपटी हुई। Thousands of sparrows sat scattered on the floor, हजारों की संख्या में चिड़ियाएं फर्श पर बैठी थी। There was no chirping, कोई चहचहाट नहीं थी। We sorry for the birds and my mother fetched some bread for them, हमें उन पक्षियों पर बहुत तरस आया और मेरी मम्मी उनके लिए ब्रेड लेके आई, रोटी लेके आई। She broke it into little crumbs, दादी ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए। The way my grandmother used to, जैसे मेरी दादी किया करती थी। And threw it to them, और रोटी के टुकड़े चिड़ियाओं को फेंके। The sparrows took no notice of the bread, चिड़ियाओं ने रोटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly, और जब हम दादी की लाश को लेकर निकल गए वो भी चुपचाप उड़ के चली गई। Next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin, अगली सुबह स्वीपर ने वो रोटी के सारे टुकड़े स्वीप किए, झाड़ू लगाई, डस्टबिन में डाल दिए। That was the love the grandmother showed for the sparrows, and the sparrows reciprocated, और चिड़ियाओं ने अपना प्रेम दादी को इस अंतिम समय में दिखाया। They did not come for the bread, they did come for mourning on her death, उसकी मृत्यु पर शोक जताने आई थी, ब्रेड खाने नहीं आई थी। This was the end of the story. Now I shall send you the questions on it, and you will learn them and write them if you have not written. अगर अब तक नहीं लिखे हैं, पहले भेजे थे, लिख रखे हैं तो ठीक, नहीं लिखे हैं तो लिख लेने हैं, लेकिन याद जरूर करना है। Right? That's all today.